first topic that we chose is Cartesian products of two sets. It is a math topic, to be honest, but दीपावृता uh, yes. एक मिनट वेट श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हाँ ठीक है करो स्टार्ट आप So it's a math topic, but today we are going to deal with it because we need a little bit in physics. So I'm introducing a little bit in not much in details. So there are two things in math, that is relation and function. And relation means, suppose if we take an example of Cartesian system, there are x and y. In y-axis also there is a real number, and x-axis also there is a real number. So all points we get as x comma y. So we defined this as a relation with r cross r. Mean the definition is given over here. Suppose a cross b, that means a comma b, where a belongs to the set of a and b belongs to the set of capital B. And for the Cartesian systems, we refer to this a as real numbers and also b as a real numbers. So here we get as x comma y, and that is a little bit of this x comma y, and x belongs to the real set of real numbers and y belongs to the set of real numbers. So this definition you can see a cross b, all the, suppose the here the example is given a lot in details. A, suppose the elements are a1 and a2 and a3, and b is set has these elements, so a cross b will have elements as these. Means you can see this and understand, I guess. यस अगर किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेस कर देना अपना From a set we are taking the first element, that is a, and it is getting, y is getting the place of b. And one thing to be noted, that the last line is saying that a cross b not equal to b cross a. You can see these two examples and judge it by yourself. These two examples clearly indicates it that both are not equal. Hope you got these Cartesian products. यस वी गॉट दिस And now we are talking about, means we were talking about relations, and we are moving to functions. And what is the difference between relation and a function? So suppose I take an example of function. Suppose x square, mean all the x are defined. No, for each and every x we get some y or the value of function. So we don't get all the real numbers as output. I mean all the real numbers are um, not values of y. So we can think like this, that a function is a subset of relations. In all these things, that is, suppose this is one set and this is a pair and this is a pair. All the pairs are not defined as functions. Some specific we choose and that we define as a function. So this is the difference between both, and we are moving to functions. दीपावृता Yes. कैन यू टीच इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज हाँ, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ठीक ही है, मतलब हर कोई समझेगा नहीं ऐसे हाँ, ओके, इट्स ओके। बाइलिंगुअल ठीक रहेगा थोड़ा हम्म ये रिलेशन क्या है, मैं बोल रहा था कि मतलब सपोज सोचो कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और उसका जो आउटपुट आता है, मतलब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, रुको। सपोज ये एग्जांपल लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। तो ये अगर हम पुट करें तो हर एक एक्स का तो एक आउटपुट आता है ना, मतलब इमेज एक आता है, तो ग्राफ ऐसे फॉर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? देवावृता हेलो, हाँ। कोई हैंड रेस करे तो उसमें डाउट ले लेना अभी प्रखर भटनागर ने भी कहा है। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर हमें होमवर्क मिलेगा इस कोर्स में? होमवर्क हाँ आज आज के क्लास में दे दूंगा। आपको डीपीपीस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए
ओके, और हमें वो जो ग्रुप है जिसमें आया था, टेलीग्राम ग्रुप, उसी में सब मिलेगा? हाँ उसमें सब मिल जाएगा, एक ड्राइव का फोल्डर भी शेयर कर दिया जाएगा स्टडी मटेरियल में। ओके। हाँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम एग्जाम्पल ले ले, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल लिए, और x में जो भी वैल्यू डालोगे तो y में क्या हर एक रियल नंबर आएगा? नहीं आएगा ना। सपोज क्या क्या आता है, सपोज हर तो नहीं आता। सपोज अगर ये कुछ कुछ नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल ले तो 1 2 4 ऐसे आएंगे, तो हर एक वैल्यू नहीं आएगा। यही मैं बोल रहा था कि रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस है, कि रिलेशन में हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, पर फंक्शन में कुछ कुछ लेते हैं। ये इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। ये इंडिपेंडेंट द सिंबल रिप्रेजेंट फंक्शन रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन जो जो इनपुट हम डाल रहे हैं उसके अंदर, और एफ ऑफ एक्स जिसको वाई हम बोलते हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये चीज को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एज वी पुट द एक्स, जैसा भी एक्स डालोगे उसका एक वाई आएगा। तो मतलब अगर सोचो, मतलब कुछ अच्छा चीज कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी अच्छा होगा ना। पर इंडिपेंडेंट कौन है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इसलिए एक्स को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। समझ गया मैं, आ गया ना ये। हाँ आगे समझ। और ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, सपोज ये कार्टेशियन सिस्टम ले लो, और एक ग्राफ हम ड्रॉ किए, सपोज लाइक दिस। और ये पॉइंट पे जो y है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, इसका जो y है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं हम। और ये जो x लिए हम, उसका नेगेटिव ले लो इस साइड पे, तो इस साइड भी तो फंक्शन डिफाइन होगा ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, ये लिए। अगर दोनों का y इक्वल हो जाए, सपोज एक्स के स्क्वायर का ग्राफ ले लो, -2 का भी स्क्वायर करोगे और 2 का भी स्क्वायर जो करोगे, आंसर जो आउटपुट जो आएगा दोनों का सेम है। तो उसलिए हम उसको बोलते हैं कि इवन फंक्शन। इवन फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर, x⁴, ये x⁴ है ना, हम लिख सकते हैं इन जनरल। ये सब एक इवन फंक्शन हो जाते हैं। और ऑड फंक्शन कैसे? सपोज x⁴ हम अगर हम ले तो ये हो जाएंगे कि ऑड फंक्शन। सपोज एग्जांपल ले लो कि 1 और -1 की क्यूब कर दो, तो दोनों आउटपुट अलग अलग आएंगे। मतलब उसका ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा उसका, ऐसा ग्राफ होगा। और इसका इमेज अगर ऐसे सिमेट्रिक होते हैं ये ग्राफ, और ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाते हैं, तो ये हो जाए। हाँ, तो साइन कैसा फंक्शन है? हाँ ये मैं बोलूंगा, ये ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ये स्लाइड, रुक जाओ मतलब थोड़ा बोल लेने दो, इसके बाद में बोल दे रहा हूँ। वो सब मतलब नोटेड है। ये समझ में आ गया ना? ये देखो लिखा भी है इसके नीचे कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है समझ गया। और फंक्शन में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बीच में कोई एक्स छूट जाए, इसलिए नहीं होगा। फॉर एवरी एक्स द फंक्शन, फंक्शन के डोमेन में। और ये भी देख लो, ये मैं नीचे समझा दूंगा ट्रिगोनोमेट्री में। फंक्शन थोड़ा समझ में आ गया ना, फंक्शन एंड रिलेशन। और ये जो चीज़ है मैं नोट्स में लास्ट में दे दूंगा, ये चीज़ देख सकते हो आप लोग। हाँ देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब सबको सर्च करना पड़ता है गूगल में। मेरे पास ये के टू द पावर 10 तक लिस्ट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये मिल जाएगा बाद में। हाँ इसका यूज होता है, सपोज हम तो जानते हैं कि गॉस जो है ना, होमवर्क मिला था कि 1 to 100 सम करके ले आओ। तो ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है।
समेशन ऑफ के, मतलब 1 2 ऐसे प्लस करते करते जाओ तो अप टू के या एन, या तो अपर लिमिट एन है ना, तो एन सम करते जाओ, फॉर्मूला आएगा एन इंटू एन प्लस 1/2, ये आता है। ये ही आएगा, मतलब देख लो ना, कॉमन लेके यही आएगा। समझ गए ना ये? श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो सौरभ को ऐड कर दो, वो ऐड नहीं हो पा रहा है एक बार शायद। अच्छा ठीक है। और इसका डेरिवेशन बोल दूं क्या? समेशन ऑफ, ये पहले वाला का, दूसरा वाला आप हाँ घर बता। में कर लेना। ये मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, ये भी आसान है, हो जाएगा। ये जो के है ना, इसको होल स्क्वायर ले लोगे किसी नंबर का, अगर जनरल टर्म ले लो, n+1 का होल स्क्वायर ले लोगे तो हो जाएगा। ऐसे करके करके सबका प्रूफ हो जाएगा। पर सबका प्रूफ हम करते नहीं, कि हमें मतलब जनरली क्यों करे, आ गया ना, तो अगर इतना इंटरेस्ट है तो कर लो घर पे, कोई दिक्कत होगा नहीं। ये प्रूफ ऐसे आता है कि सपोज इस कोई भी एक सम ले लो, इक्वल टू 1 प्लस, ऐसे करते करते एन तक गए, ठीक है। और हम सेकंड लाइन पे एस ही लिखेंगे उल्टा ऑर्डर में, n+n-1, ऐसे करते करते टिल 1। तो इस हम दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को, ये 2s आ जाएगा। और पहला वाला क्या आएगा, n+1, ठीक है। ठीक है। ये दोनों n+1 आएंगे। और ये सेकंड जो टर्म है, मतलब 1 के बाद 2 आएगा ना, तो 2 + n-1, ऐसे करते 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 ये प्लस होगा बीच में, लास्ट टर्म क्या आएगा, n+1, ठीक है। और कितना टर्म आएगा ऐसे, मतलब हर एक टर्म तो n+1 हो रहा है ना, तो 2s 2s इक्वल टू n इंटू n+1, यही आएगा ना, क्योंकि हर एक तो देखो ना n+1 आया, ये भी n+1 आया लास्ट वाला, ये भी n+1 आ गया। तो ऐसे कितने टर्म होंगे, जितना टर्म यहाँ है, सपोज 1 एक है, आया स्टेटमेंट s इक्वल टू n इंटू n+1/2, यही आ जाएगा। समझ गए ना ये डेरिवेशन? थोड़ा लैग हो रहा है, दिख रहा है ना इसका प्रूफ पूरा? हाँ दिख गया। यही है इसका डेरिवेशन। अब तुम हायर पावर्स के लिए भी कर लो इसका, नहीं इसका डेरिवेशन रहेगा, कुछ होगा नहीं। अब हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। 15 मिनट। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है ये तो सबको आता है। ये एक्सप्लेन ये कर दो कि ये सबको आ जाता है ना? ये तो आता है सबको। हाँ, तो ये छोड़ दो। अब ये साइन कॉस ये भी सबको आ जाता है। हाँ ये तो बेसिक फंक्शन है। इसको इनवर्स ले लो तो ये आ जाएगा। अब ये ग्राफ है, और ये देखो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जब ऊपर डिस्कस किया था, ये कॉस और सेक फंक्शन इवन होते हैं और बाकी ऑड फंक्शन हो जाते हैं। हाँ ये भी समझ आ गया। हाँ, ये जो कॉस का फंक्शन है देखो, मतलब कॉस का इस पॉइंट पे जो y है, इस पॉइंट पे भी सेम है, देख सकते हो, विजुअलाइज कर लो ना। ये देखो ना, π/2 पे 0 है, -π/2 पे, और π/2 पे भी 0 है। तो अगर ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, ऐसा कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा, सपोज इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, तो इसका जो एक्स है और इसका नेगेटिव एक्स है, उस दोनों का वाई का वैल्यू सेम आएगा। समझ गए ये? हाँ समझ गए। तो इसको हम बोल देंगे कि ये इवन फंक्शन है।
और साइन का क्या हो रहा है, साइन का बहुत विजुअलाइज कर लो तो मतलब, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दूंगा कि कोई भी क्यूबिक ग्राफ लोगे तो ऐसा ही एक कर्व आता है ना, हाँ साइन का फंक्शन भी देखो तो कुछ वैसा ही दिख रहा है। अब देखो ये सपोज पाई बाई टू पे इसका वन है और नेगेटिव पाई बाई टू पे नेगेटिव वन है, तो मतलब सेम एक्स पे दोनों का उल्टा वैल्यू हो गया ना, दोनों का सेम थोड़ी ना आया। ऊपर जाके डेफिनेशन देख लो इसका। ऑड फंक्शन हम बोल रहे हैं किस किस को, जिसका एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू तो तुम्हारा वन आएगा, साइन नेगेटिव वन पाई बाई टू का तो नेगेटिव वन आएगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया। यस। हाँ हम्म। और साइन का ग्राफ ये एक्स जीरो से शुरू करके मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है, मतलब इसका एक्स। और इसका वाई तो मतलब ऐसे ही एस एच एम की तरह वाइब्रेट करेगा, तो मतलब पॉजिटिव वन से नेगेटिव वन तक आएगा। टू इन्फिनिटी। हाँ एक्स तो इन्फिनिटी तक होगा, पर वाई तो मतलब वाई का तो एक लिमिट है ना, इस तरफ जाएगा और नीचे नेगेटिव वन तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं कुछ लेगा। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये मीन पे मतलब एक्स से वाई का मैक्स डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो क्लास नाइन्थ एट में पढ़ा चुके हो काउंट्स में, सेम ही है। और ऐसा सबका ग्राफ एक्सप्लेन कर दूं क्या सबका, और टेन का भी देख लो क्या जाता है। टेन का बोले रहा इनवर्स खुद समझ लेना। सपोज ये एक कार्टेशियन सिस्टम है और ये हम कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं। अब ये टेन का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, यही बोलता है ना। पर जाके डेफिनेशन देख लो टेन का क्या आता है, वाई बाई एक्स, मतलब वाई बाई एक्स आएगा। अगर सपोज सोचो एक यूनिट सर्कल लेके हम इसको घुमाएंगे, तो सपोज जब एक जीरो हो जाएगा वाई बाई एक्स है ना, एक जीरो हो जाएगा तब ये टेन डिफाइन होगा क्या, एनीथिंग बाई जीरो डिफाइन नहीं है। हाँ, नॉट डिफाइंड। तो टेन का फंक्शन में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है। लाइक देखो ये इसका जो ग्राफ है नीचे दिखा रहा हूँ, पक्का ये, इसलिए देखो इसका ग्राफ जो है ना कहीं कहीं पे ये छोड़ रखा है, तो इसके लिए इसका मतलब डोमेन हर जगह पे डिफाइन नहीं है इसका। ठीक है। नहीं, नहीं, रुको एक मिनट, ये जब एक जब जीरो हो जाएगा तो इसका डिफाइन नहीं होगा ना, और एक्स का जीरो होगा जब ये घूम 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 के लाइन आपका ऐसे परपेंड ऐसे जा रहा है ट्रायंगल, अब ऐसे बना, अब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन बन गया ऐसा। तो इसका y तो मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, पर इसका x तो कोऑर्डिनेट जीरो हो गया ना। इससे बोलूँ क्या ये, हाँ अब ये ट्रायंगल जब रोटेट करोगे ऐसे पॉइंट पकड़ पकड़ के यहाँ पे जब ले आओगे, इसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, और x क्या है, इसका तो x जीरो हो जाएगा ना। तो अगर हम एंगल ऐसे पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस से लेते हैं, सपोज ये कोई थीटा है, और जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये पाई बाई टू हो गया, तब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इसलिए हम 1090 डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है टेन पाई बाई टू पे मीट कहीं नहीं किया, देखो ये ग्राफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इसकी लिमिट होती है जहाँ पे पहुंच हाँ नहीं पाता है। हाँ हाँ, ये दो आप देख सकते हो, और ये एसएच में बहुत काम आएगा। सही बोल रहे हो। ये जो साइन का ग्राफ है, सपोज आप सोचो ना कि साइन का तो मैक्स वैल्यू वन आता है, साइन का मैक्स वैल्यू तो वन आ जाता है ना, उससे ज्यादा क्या आता है। हम्म, अगर साइन का कोई बताएगा कि साइन का मैक्स वैल्यू वन क्यों आता है।
इसका भी रीजन होता है क्या? मैं सोच रहा हूँ तो बता दूंगा, पता था कोई मतलब। श्रेयांश को पता होगा शायद, श्रेयांश नहीं, हमें नहीं पता, नहीं पता। साइन का मैक्स वैल्यू क्यों वन होता है ये पता नहीं, मतलब बोल हम दे रहा हूँ। यूनिट सर्कल से सॉल्व कर सकते हैं क्या वो हाँ साइन हाँ का? हाँ हाँ, यही रीजन है। हाँ तो वो जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तब वो 1 हो दोनों जाएगा सेम आ ना। जाएगा, हाँ हाँ, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और नेगेटिव वन क्यों मिनिमम वैल्यू होता है? क्योंकि साइन एक इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन है ना। यूनिट सर्कल में जब लोगे तो नेगेटिव एक्स में जब आओगे वाई तो पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ऐसे किसी लोगे किसी पॉइंट, तो इसका एक्स नेगेटिव में आता है और इसका वाई पॉजिटिव में आता है। और जब ऐसे हो जाएगा या ऐसे लोगे, तो समझ सकते हो कि नेगेटिव एक्स आ रहा है और नेगेटिव वाई ऐसा आ रहा है। तो इसका डिस्टेंस तो पॉजिटिव, डिस्टेंस तो ऑलवेज रूट के अंदर होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और इसका एक्स तो नेगेटिव में आ रहा है, तो जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेगा ऐसा कोई, तब उसका मैग्नीट्यूड मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। और उसका क्या बोलूँ, मतलब एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो भी तो मतलब नेगेटिव एक्स आएगा। और उसका डिस्टेंस तो एक्स आ गया, तो नेगेटिव वन हो गया ना। हो गया। हाँ भाई। इसलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वन और नेगेटिव वन से टेंड करता है। अब ये देख लो जल्दी जल्दी कि ये ए साइन थीटा है। अब डी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो साइन का जब मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो इसका एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वाई वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। हाँ, साइन को 1 कर दें। हाँ, तो ये जो ग्राफ है उसका मैक्सिमम वैल्यू अब कितना हो गया, वन हो गया। इसलिए जब ऐसे ही पढ़ते हो तब ये मतलब साइन का ग्राफ लेते हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड तो लोग यही सोचेंगे कि वन आएगा, पर थोड़ी ना वन हमेशा होगा, उससे भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड का हो सकता हमेशा नहीं होता। है। हाँ, इसलिए हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये डी क्यों हुआ? सपोज सोचो कि कोई एक फंक्शन था ऐसा। इसी ना कि मान लो कोई उसका इनिशियल फेस कुछ गिवन हो, जैसे होता है ना उसमें इनिशियल फेस गिवन होता है, इसलिए। हाँ हाँ, इनिशियल फेज भी हो सकता है। अब ये देख लो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ना, सपोज ऐसा कोई फंक्शन था, ऐसे डिफाइन हुआ था। सपोज इस एक्स पे कलर चेंज कर ले, तो इस एक्स पे ये वाई दे रहा था। अगर हम थोड़ा माइनस कर ले, मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स माइनस डी कर ले, तो क्या होगा? सपोज डी का वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज 2 यूनिट से डी एज्यूम कर लो ना, 2। तो ये 2 यूनिट छोड़ के जो एक्स था, दैट पॉइंट विल कम हियर ना। हाँ। सपोज इस एक्स पे ये वाई दे रहा था। अब हम एक्स माइनस डी कर रहे, तो जो एक्स प्लस डी पॉइंट था, एक्स प्लस डी पॉइंट जो था उससे हम डी माइनस करेंगे तो यही वाई मिलेगा ना। तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। इसलिए हम डी को रखते हैं कि ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट करने के लिए। भैया एसएचएम की बात हो रही, तो एक एसएचएम का ज्ञान दूं? नहीं नहीं, एस एच एम का बाद में बता दूंगा। अच्छा, ये एस एच एम का बेसिक है, ऐसा कुछ आता नहीं है उसमें। अब ये देख लो, ये देखो, ये अभी डी डी का नहीं बोला था मैंने। ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो फेज डिफरेंस आता है ना एस एच एम में, यही बोल रहा था। अब वर्टिकल शिफ्ट जो हम्म। आता है वो नीचे देता है ये डी। ये डी तुमको बता देगा कि वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा। सपोज ये सोच लो कि कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ऐसा डिफाइन किया था। अब हम इसके साथ डी जोड़ देंगे, तो यही तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। सपोज ये एक फंक्शन था, ऐसा ग्राफ बना था उसका। और हम बोल रहे कि पहले एफ ऑफ एक्स ऐसा था कि सपोज एक्स स्क्वायर। अब हम जी ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस हम डी ऐसा आएगा।
तो क्या होगा, इस पॉइंट जहाँ जीरो हो रहा था, सपोज एक हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। और इस पॉइंट पे क्या होगा, डी आएगा। समझे। हाँ समझ रहे। तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पे जब ये ऐसा ग्राफ था, अब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट, हाँ डी पॉइंट, हाँ हाँ, डिपेंडिंग ऑन डी। इसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट। ऐसे ही हम ग्राफ को, इसका फेस डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है? डी का फेस डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। डी का कब से फेस डिफरेंस से, वो तो मतलब एफ ऑफ एक्स से होता है ना। सपोज ये देख लो, फिर से बोल देता हूँ, एक्स डिफाइन था एक्स स्क्वायर पे, और अब हम डिफाइन कर रहे हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये स्क्वायर छोड़ो, विजुअलाइज करने में वाई क्यों दिया मैंने। सपोज ऐसे में लोग पढ़ते हैं कि फाइव, क्या होगा, सपोज ये एम दे दो, कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये दो फंक्शन हमने डिफाइन किया। पहला वाले के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, एम इंटू एक्स, सपोज कोई एक एंगल पे टेन थीटा इक्वल टू एम पे, ये तो सबको आता है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हाँ हाँ, ये टेन को हम एम बोल दे रहे हैं। अब क्या होगा कि एक्स प्लस फाइव पे एम होगा, मतलब अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि सपोज जब एक जीरो था, तब वाई का वैल्यू जीरो हो गया ना। हाँ। एफ ऑफ एक्स में जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, वाई का वैल्यू, मतलब फंक्शन का वैल्यू तो जीरो आएगा ना। हाँ। अब हम जी ऑफ एक्स में नेगेटिव फाइव पुट करेंगे तो जीरो आएगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है। हाँ। हाँ, तो एक्स में नेगेटिव फाइव पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, जी ऑफ एक्स। हाँ। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव फाइव पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट पे, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा अब। समझे। अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ ना? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऊपर भी लिखा है, रुको। ये देखो, ये सी जो है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, लिख रहा है ये। हाँ। और ये वर्टिकल शिफ्ट बाहर वाला। अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ समझ रहे। अब ये चीज तो हो गया, फंक्शंस, एंटीग्रामेटिक रेशियोज। अब आते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। हाँ बोलो। ऐसे ही में हम यूज करते हैं। और हाँ, ऐसे में यूज कर लेते हैं। और ये कुछ वेव्स ऐसे इक्वेशन लिखने में हम, वेव्स ही समझो ना, ऐसे ही ना हो फिर भी चलेगा। और जो मतलब पीरियोडिक है, मतलब कुछ मोशन अगर पीरियोडिक हो, काइनेमेटिक्स में भी लगा सकते हो। अगर कोई मोशन, ऐसा कोई ना रूल नहीं है कि एस में लगेगा, या काइनेमेटिक्स में अगर कोई पीरियोडिक मोशन दे देंगे तो मतलब ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो। ये जो आपको सिखा दिया ना, कितनी देर बाद रिपीट कर रहे हैं, हाँ, तब एक्स की जगह टाइम आ जाएगा। अब जस्ट चैट ओपन कर दो, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है कोई भी हो। देख लो, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिक, मतलब बेसिक जो है ना, लिमिट से आता है। लिमिट तो सबको पता होगा कि सपोज सपोज फिजिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि v इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी। यही तो डिफिनेशन है ना इसका। अब अगर सब सपोज सोचो कि एक टाइम थोड़ा बड़ा, मतलब रुको, स्क्रीन हट गया। हाँ हाँ हाँ
हाँ टाइम थोड़ा बड़ा होगा तो मतलब कुछ तो एरर आएगा ना। सपोज ये ग्राफ देखो, अगर टाइम का इंटरवल इतना बड़ा लेंगे हम, हाँ, तो ये जो y में जो शिफ्ट हुआ इसका स्लोप थोड़ा मतलब, ये देखो अगर हम थोड़ा बड़ा x ले लेंगे कि डेल x बहुत ही मतलब लार्जर वैल्यू है, तो इसका स्लोप कैसा आया देख लो। ये स्लोप आया ना। रुको मैं अच्छे से बोल देता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को शायद। यस प्लीज। इस बात को नोटिस करना, एक सीट ही दिखाती खाली रखी जाती है, एक चेयर। सपोज हम हमें कोई भी कर्व है और इसका हम इस रीजियन के अंदर स्लोप निकालेंगे, तो ये डेल एक्स हो गया। हो गया ना ये डेल एक्स, और ये डेल वाई हो गया। यही तो इसका स्लोप आएगा ना इस दो पॉइंट के बीच में। हाँ इसको हम स्लोप बोल देते कि डेल वाई बाई डेल एक्स। अब ये पूरा का स्लोप होगा। अगर हम सोचो अगर यही इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट का हम स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट का, तो ये उसका स्लोप ये आएगा ना। ये लाइन इसका स्लोप है। अब थोड़ी ना ये लाइन स्लोप आ जाएगा। समझ गए ना, ये लाइन इसका स्लोप है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन इसका स्लोप है। दिख गया ना, ये लाइन इसका स्लोप है। और ये पॉइंट जो है, सपोज ये एक विजुअलाइज कर लो कि हम ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे नीचे ला रहे हैं। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो डेल एक्स छोटा हो जाएगा, डेल वाई भी छोटा हो जाएगा। और नीचे लाओगे इस पॉइंट को, ये पॉइंट को बोल रहा हूँ, और नीचे लाए और छोटा हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। नहीं 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 नहीं, ये तो जो पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाएगा ना स्लोली। हाँ हाँ हाँ, इसको ही हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं कि कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट का स्लोप हम जब निकालेंगे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट से ही हम स्लोप निकाल सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन क्या होता है मतलब इंस्टेंटेनियस पॉइंट का, मतलब कोई भी एक पॉइंट का स्लोप। जब स्ट्रेट लाइन होता था तब क्या लिखते थे, डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल टी लिखते थे। तो क्या होता था कि इतना बड़ा लाइन का तुम स्लोप ले लेते थे, पर हम बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का स्लोप क्या है। अगर ये भी किसी किसी को डाउट होता है कि कोई कर्व का इस सिंगल पॉइंट पे हम यही क्यों स्लोप ले लिए, हम ये भी तो स्लोप बोल सकते हैं ना, ये भी तो वन लाइन है। ये डाउट हुआ होगा ना। तो कुछ हाँ हाँ। अब इसके लिए मैं आज एक पॉइंट रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पे कोई एक सर्कल बना लो। कोई भी एक सेंटर मतलब ऐसा एक सर्कल बनाओ इसका सेंटर से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाए, और इस सर्कल का टेंजेंट जो होगा यही तुम्हारा ये पूरा कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। समझे इस बात को। मैं रिपीट करूं? नहीं रुको, स्क्रीन पे आया नहीं है, थोड़ा लैग हो रहा है, मुझे भी पता नहीं क्यों। हाँ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे नहीं। हाँ ये जो देख रहे हो ना, एक सर्कल ड्रॉ किया है। ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करो कि किसी भी सेंटर ले लो। इस पे अगर इस साइड सपोज कोई बोले कि मैं दूसरा साइड से एक सर्कल लूंगा, ले लो, कोई आता जाता है नहीं, इस तरफ से सर्कल लोगे, इस तरह से सर्कल लोगे तो इस पॉइंट से मतलब समझ लो ना, ये एक ग्राफ है तो थोड़ी ना आप सर्कल इस तरह ड्रॉ करोगे, ये नहीं होगा। आपको सर्कल इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा। और ऐसा एक ये जो पॉइंट है, सर्कल का टेंजेंट और ये टेंजेंट मिल जाएंगे। देख लिए ना।
और एक बार बोल देता हूँ मैं। सपोज ये पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे और इस पॉइंट पे हम स्लोप लेंगे, तो ऐसा एक सर्कल बनाओ कि इस पॉइंट पे मतलब 90 डिग्री पे आए, और ये जो सर्कल एक ऐसा बन गया, इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा यही इसका स्लोप हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम डिस्कस कर देंगे। देख लिए नहीं है? हाँ सर, हाँ भाई। अब ये देख लो, ये जो एच है, एच टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, उसको ही हम बोल, वहां से एच टेंडिंग टू जीरो। दिख गया नहीं ये डेफिनेशन? यही यही होता है डेल डी एफ बाई, ये एच लिखा है तो एच लिख दो, क्या जाता है इनका। लिमिट से ही हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब जो मतलब इन दोनों का स्पेसिंग है। सपोज ये देखो एक्स और एक्स नॉट प्लस एच, ये जो मतलब इनका इतना बड़ा गैप है ना, ये गैप को हम इनफाइनिमिस्टल कर लेते हैं, मतलब बहुत ही छोटा गैप कर लेते हैं। तो ये पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास आ जाएगा, इसको टेंड कर लेगा, फिर कभी इस पॉइंट पे नहीं आएगा, इसलिए बोला है टेंडिंग टू जीरो, नहीं तो इक्वल टू जीरो बोल देते। समझ गए ना ये? हाँ भैया। हाँ, कैलकुलस में थोड़ा मतलब एरर आता है, एरर लेस नहीं है, पर हमको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये अगर जीरो कर तो फिर लोगे, अगर भैया अगर एच जीरो को टेंड करेगा तो फिर तो स्लोप इन्फिनिट को टेंड करेगा ना। हम्म, नहीं नहीं, रुको रुको एक मिनट। एच को तुम जीरो कर दोगे तो स्लोप क्यों, मतलब हाँ ऐसे तुम सोच रहे हो कि एक कोई चीज नीचे अगर बहुत छोटा हो जाए तो ऊपर वाला इनफाइनिमिटल हो जाए, ऐसा बोल रहे हो कि? हाँ ऐसा क्यों होगा, मतलब स्लोप तो मतलब इन्फिनिट कब होगा, जब स्लोप एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो तो नहीं होगा ना, वो कभी और होगा, पर ये इस केस में ये नहीं होगा, ऊपर भी कुछ वैल्यू है। मैं कंफ्यूज हो गया। और हम टेन का वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाता है ना, हम स्लोप ले रहे हैं तो टेन ही ले रहे हैं ना। कहाँ गए ये? टेन का रेंज हाँ क्या होता है? टेन का रेंज क्या होता है? अभी तो ग्राफ दिखाया तुम लोगों को। जीरो से इनफिनिट। हाँ, तो ये स्लोप भी इनफाइनाइट हो सकता है, जब ये परपेंडिकुलर लाइन कोई आ जाए, ऐसा कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाए, तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। ये समझ गए ना? हाँ भाई। नहीं नहीं, दोनों ही स्लोप है, पिंक वाली है डिफरेंशिएशन वाली स्लोप, मतलब इंस्टेंटेनियस स्लोप, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप। ये मतलब दो पॉइंट के जैसे स्ट्रेट लाइन में स्लोप लेते हो, इस दोनों पॉइंट का मिला के एक स्लोप लेते हैं, पर इस कर्व से कोई लेना देना है नहीं इसका। हम जब कर्व पे डील करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्लोप ही लेंगे। समझ गए ये? अब ये बताओ, सबको तो पता है साइन का डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या आएगा? कॉस। क्यों आता है कॉस? किसी ने बोला ये क्यों कॉस आता है? किसी को पता है ये कॉस क्यों आता है? ये तो पता है कॉस आता है, बट ये नहीं पता कॉस क्यों आता है। हाँ मुझे भी नहीं पता क्यों। हाँ, ये कोई भी नहीं बोलता, बस रटवा बस के। लिखवा देते हैं। हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं कि ये साइन ऑफ एक्स है। रुको एक मिनट, साइन ऑफ एक्स ये आ गया ना, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे ना। हेलो? हेलो। हाँ। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब। सपोज हाँ हम एफ ऑफ
एक्स प्लस एच ले रहे हैं, तो अब क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। हो गया ना। हाँ भाई। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का ए प्लस बी फॉर्मूला लगवाओ। ये क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एच और प्लस कॉस एक्स साइन एच, यही आता है ना। हाँ भैया। ये लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पर देख लो, बगल में ही है शायद। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही है ना ऊपर वाला। तो हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कितना आएगा, कि ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एच माइनस वन माइनस, नहीं 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 रुको, एक बार फिर से लिख देता हूँ ये। क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स। हम कॉमन लिख सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। साइन एक्स कॉस एच माइनस वन प्लस कॉस एक्स साइन एच, यही हुआ। और हम ये नीचे जो एच है इसका, नीचे एच है ना, हाँ भाई। अब हम इसको एच ले लेते हैं नीचे। हो गया ना। अब अब लिमिट का डेफिनेशन क्या है, कि लिम एच टेंड्स टू जीरो, ये होता है ना लिमिट का डेफिनेशन डिफरेंशिएशन के लिए। हाँ भैया। अब ये हम थोड़ा मतलब डिजाइन करके लिखेंगे, कि साइन एक्स कॉस एच माइनस अगर h वन, टेंड्स टू 0 तो फिर cos h टेंड्स टू 1 हो जाएगा क्या? हाँ रुको लिखता हूँ ये हो गया। और प्लस लिख के लिम एच टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स साइन एच बाई एच, ये आएगा ना। हाँ भैया। अब ये कॉस एच जो है ना, कॉस जीरो का वैल्यू क्या आता है, वन। तो अब जीरो को टेंड करेगा एच, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना, ये पार्ट क्या होगा, जीरो ना। एच को जीरो पुट कर दो, पुट करके देखो हाँ क्या आता 0 हो जाएगा। है। हाँ हाँ, मतलब टेंस टू जीरो हो जाएगा ना। तो ये टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और ऊपर से ये साइन एच जो है वन आ रहा है, और एच तो जीरो, मतलब इसका लिमिट लोगे तो ये पार्ट जीरो आ जाएगा इसका, ये पार्ट पूरा जीरो आ जाएगा। समझ गए ना। ये पार्ट क्यों जीरो आ रहा है, कॉस एच तो जीरो हो, कॉस एच वन हो जाएगा, और वन माइनस वन जीरो, ये पार्ट। अब इस पार्ट पे चले आओ, इस पार्ट पे क्या होगा, साइन एच साइन जीरो क्या होता है, वन होता है ना। हाँ भाई। हाँ बट अब हम इसको ये लिखेंगे, कि जो ये एच पे हम डील कर रहे हैं, तो ये तो कॉस का कोई लेना देना है नहीं इसमें, तो कॉस एक्स बाहर लेके चले आओ, और लिम एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच, ये आएगा ना। अब ये पार्ट इक्वल टू वन हो जाएगा, ये लिमिट से आता है, वो लिमिट्स पढ़ लो घर पे, ये वन आ जाएगा। साइन ए जीरो वन आता है ना, हेलो, साइन जीरो वन आता है।
हाँ हाँ तो ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास है क्या, cos x आता है ना, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन cos x लेते हैं। समझ में आया कि वो cos x होता है। आ गया। ये कहीं पर मिलेगा नहीं, मतलब कोई बोलता नहीं इसको, ऐसे तुम। समझ नहीं आया भैया कि साइन एच अगर ये 0 हुआ और एच भी 0 को टेंड करेगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ तो 0 कहाँ हुआ, हमें वो थोड़ी ना बोला कि तो लिमिट से आता है, तो मतलब लिमिट्स भी एक दिन लेना पड़ेगा क्लास। तो लिमिट्स का बेसिक डेफिनेशन से आ जाता है। ओके। कब से बोला कि मतलब 0 मतलब टेंस टू 0 है ना। तुम कैलकुलेटर लेकर करके देख लो। साइन रो कैलकुलेटर कर लेते हैं क्या जाता है। तब कैलकुलेटर खोल के देख लो, 0.00001 और उसके बाद यही नीचे डिवाइड कर लो 0.00001। तो इसको तो मतलब करके देखो, ये 1 ही आएगा। तो लिमिट्स का डेफिनेशन है ना, एच टेंस टू 0 हो जाएगा तो साइन एच बाई एच ये 1 आएगा, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। लिमिट्स का भी एक क्लास ले लूंगा। लिमिट्स का तो मतलब एक सीरीज आता है, कोई कोई डाउनलोड कर लो या आज दे दूंगा ये। ऐसे ही हम ऐसे ही कॉस एक्स प्लस एच लोगे तो मतलब ये साइन नेगेटिव साइन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही हम सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कर लेते हैं। डाउट था कि हाँ ये तो बोलते हैं कि बहुत छोटे एंगल्स के लिए हम थीटा साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं, तो वही बात है क्या? हाँ वो यू कैन डू लाइक दैट, बट ये तो हाँ वो कैन डू लाइक दैट, बट लिमिट्स का जो डेफिनेशन आता है ना उससे हो जाता है ये। ऐसा एक सीरीज आता है कि ये जो टेलर सीरीज बोलते हैं, कॉस का एक एक्सपेंशन आता है और साइन का भी एक एक्सपेंशन आता है। थीटा बहुत छोटा हो गया तो थीटा स्क्वायर तो और भी छोटा आएगा ना। हाँ हाँ तो भाई। हम ये मतलब देखो टेलर सीरीज लिख देता हूँ, टेलर सीरीज। एक कॉस का एक्सपेंशन मुझे मेरे पास अभी है नहीं, मतलब हाँ मिल गया। कॉस का एक्सपेंशन लिख देता हूँ। सपोज ये क्या था, यहाँ पर साइन था। साइन का एक्सपेंशन साइन एक्स ले लो या एच ले लो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। साइन एच ले लोगे तो एच माइनस 1/3 फैक्टोरियल एच क्यूब। अब ये एच टेंड्स टू 0 हो रहा है तो मतलब बहुत ही छोटा, उसका क्यूब कर दोगे तो और भी छोटा हो जाएगा ना इसके कंपैरिजन में। हाँ भाई। हाँ भैया। हाँ थोड़ा 1 मिनट पे लैग हो जाता है। रुको 1 मिनट, आ जाएगा। हाँ ऐसा इसका सीरीज आता है। ठीक है भैया। इसका सीरीज आप नेट पे सर्च कर लोगे मिल जाएगा। उसके बाद ये आता है 1/5 n⁵। अब सोचो ना, कोई भी एक छोटा नंबर लोगे 0 पॉइंट ऐसा कुछ, उसका क्यूब करोगे तो और भी छोटा आ जाएगा ना। हाँ भैया। अब यही ऑलरेडी टेंडिंग टू 0 है, अब उसका क्यूब मतलब ये सब उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ो। अब ये बाई एच है ना, ये बाई एच है, तो ये करके क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। फिर से स्क्रीन लैग हो गया, रुको। जो साइन एच है उसके बाई एच कर दोगे तो इसके नीचे भी एच आ जाएगा, और ये पार्ट हम निगलेक्ट कर देंगे, ये पार्ट। तो क्या आया, 1 ही आया ना। हाँ भाई। ये बाई एच कर दोगे
और ये बाई एच आ जाएगा, और इस पार्ट को तो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, मतलब हम इरेज कर दे रहे हैं ये पार्ट। तो ये एच बाई एच हुआ, तो हम इसको बोल देंगे कि 1, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आता है कि कॉस एक्स। ऐसे आप कॉस का भी कर सकते हो, कि मैं वो नहीं कराऊंगा, वो होमवर्क है आज के लिए, लिख दे रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। संडे को भी क्लास में भैया। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये करके ले आना। करना क्या है, कॉस एक्स प्लस एच जो है उसका जो एक्सपेंशन आता है, और ये सीरीज पे पुट करके खुद कर सकते हो। और हेल्प चाहिए तो मतलब ये जो कॉस और साइन का जो क्या बोलते हैं इसका एक्सपेंशन आता है उससे कर सकते हो। जो सेकेंड टर्म है ये सब नेग्लेक्ट कर दो, फर्स्ट टर्म तक ही जाएगा, क्योंकि ये एच टेंडिंग टू जीरो है। उसके कंपैरिजन में ये स्क्वायर मतलब 1 से ज्यादा पावर वाला सब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका छोड़ दो। अब हम आते हैं कि इंटीग्रेशन पे। डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया ना। आ गए। हाँ भैया। अभी इंटीग्रेशन पे आते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या कहते हैं कि सपोज हम लेते हैं कि सपोज ये सोचो कि ये डेल एक्स हुआ ना, ये तो डेल एक्स हुआ मतलब चेंज इन एक्स। हाँ भैया। और इस एक्स पे वाई ये आया, मतलब ये एफ ऑफ एक्स हुआ, मतलब वाई तो एफ ऑफ एक्स है ना। ये पॉइंट पे एक आएगा, ये पॉइंट पे एक आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये क्यूब का जो एरिया है, यू कैन सी, मतलब एक इनफाइनाइट डिमेंशनल क्यूब ले लो कोई, ऐसा एकदम थिन क्यूब लेते हैं हम। मतलब क्यूब बोल रहा हूँ, मतलब एक रेक्टेंगल जैसा फिगर ले लोगे। तो ये जो इनफाइनाइट डिमेंशनल है ना, तो हम डी एक्स लिख सकते हैं। ये डी एक्स लिख सकते हैं ना, कि इस डिस्टेंस को हम डी एक्स लिखेंगे, इतना छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है भैया। ये हम इस पॉइंट पे अगर कोई लेंगे, तो सपोज ये एक्स है, और ये जो पॉइंट है हम इसको बोल रहे हैं कि एक्स प्लस डी एक्स। समझ गए ना, एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि ये जो इसका जो विड्थ है हम इसको डी एक्स लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसका जो एक्स है ना, तो मतलब बहुत ही छोटा है ना, तो मतलब वाई का वेरिएशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब कैलकुलस में थोड़ा एरर आता है, पर वो इतना एरर आता नहीं, इसलिए हम कैलकुलस एररलेस नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब का अगर एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकलना है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई जो है इसका ही तो हाइट है ना। एफ ऑफ एक्स, और नीचे जो रेक्टेंगल का एरिया एरिया कैसे निकालते हो, ये हाइट ले लेते हो और इसका ब्रेड लेते हो, ये इंटू डी एक्स, यही तो है ना। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा अच्छा है। रुक, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो। स्क्रीन तो शो हो रहा है ना, इससे क्या ज्यादा शो कर दे। ये है इंटीग्रेशन की फंडा, मतलब हम ये एरिया निकालते जाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये एरिया होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप है। मैं उससे अब बोला नहीं, क्योंकि सबको पता है ना डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। हाँ बोल दिया था शायद स्लोप। ये देख सकते हो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये एरिया निकल रहे हैं हम। कुछ स्टैंडर्ड शेप का हम एरिया वेरिया निकाल लेते हैं। इस तरफ आ जाओ। सपोज सोचो ये कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया हम, और ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, और सर्कल का कोई एरिया बोल सकता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना।
या 2 पाई आर होता है, उसको पता है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसका एरिया हम दो तरह से निकल सकते हैं। पहला अप्रोच देख लो, इसका तीन तरह से मैं दिखा दूंगा इसका एरिया कैसे आता है। ऐसा कोई रिंग ले लो इसका, ठीक है, ऐसा कोई रिंग ले लो, ठीक है। और इसका मतलब कैलकुलस कर रहे तो इसका मतलब ये जो देख देख पा रहे हो, ये जो ब्रेथ है ये कितना होगा, कोई बोलो। dx होगा ना। हाँ भैया। dx छोड़ो, dr ले लेते हैं। dr, और इस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, r तो ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस तो ज्यादा मोटा हो गया रे। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, r होगा। अब कोई बोलेगा कि हम ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिए और ये डिस्टेंस हम लिए, ये भी तो बोल सकते हो ना। हाँ भैया। हाँ, ये भी मतलब रीजन ऐसा कुछ खास नहीं है। इस तरह देखोगे तो जब एरिया निकाला था इस पार्ट का, तो एक्स dx किया था ना। हम फंक्शन जो लेते हैं ये मतलब x प्लस dx का नहीं लेते हैं, ये पार्ट का ले लेते हैं, पहला वाला का। ठीक है भैया। मतलब कैलकुलस थोड़ा मतलब एरर आता है, इसलिए हम पहले आर का ही लेंगे। और ये आर हुआ। और अगर हम ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको हम मतलब ऐसे खोल ले रहे हैं तो इसका एक रेक्टेंगल आएगा ना। सपोज ये अब लोग यहाँ से कट करके ऐसे खोल दे रहे हो कि ऐसे खोल खुल गया, मतलब इस पॉइंट से ऐसा कोई आ जाएगा ना, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल आएगा। मतलब क्या कैसा हाँ एग्जाम, भाई। हाँ भैया। ये थोड़ा विजुअलाइज कर लोगे तो आ जाएगा। मतलब इसका रेडियस कितना, अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर। हाँ भाई। और इसका ब्रेथ कितना हुआ, dr। ठीक है, तो एक एक ऐसा एलिमेंट का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू dr। यार डियर, हाँ भाई। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई r² बाई 2 यही आया। तो देखो पाई r² आ गया। इतना तो इंटीग्रेशन आता है ना, 0 से r तक करोगे। हाँ इतना। हाँ भाई। इसका लिमिट लेकिन ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो समझ आ गया, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं मतलब। मैं अगले क्लास में बता दूंगा, अभी बस ये सेव्स वाला सीख लो, इतना इंडेफिनिट डिफिनिट ये फिजिक्स में नहीं आएगा, ये मैथ्स पे कर लेना। फिजिक्स में इतना ज्यादा इंटीग्रेशन आता नहीं है। ये समझ गए ना आप लोग। हाँ भाई। हाँ समझ गया। यस। और इनडायरेक्टली आप लोग पोलर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। ये सब ये एक फ्रेम हो गया, ये एक सर्कल है, और हम एक रेक्टेंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये हाँ हाँ सॉरी, देख सकते हो आप। मेरे को स्क्रीन लोड हो जाने दो ये। हाँ, ये ट्रायंगल कंसीडर किया हम, ये वाला एक ट्रायंगल है सपोज, ऐसा एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल, मतलब इन ये जो थीटा है ना, इसको हम डी थीटा बोल रहे हैं कि डी थीटा। समझ गए आप लोग, क्यों डी थीटा बोला, मतलब बहुत ही छोटा एंगल है ये, और ये पॉजिटिव एक्सिस पे थीटा है। ठीक है। अब ठीक है। आर का फॉर्मूला तो सबको आता है कि आर
इंटू एंगल होता है, तो आर डी थीटा हो गया ना ये लेंथ कितना होगा, आर डी हाँ थीटा। अब ये ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, मतलब ट्रायंगल का एरिया आप लोगे तो हाफ, ये रेडियस कितना हुआ, आर हुआ ना, मतलब ये रेडियस तो आर हुआ, मतलब हाइट कितना हो जाएगा, आर होगा, हाफ इंटू आर इंटू बेस। अब ये लगेगा कि ये बेस थोड़ा कर्व्ड है तो कैसे होगा, मतलब बोला ना कि इनफाइनाइटेशनल डी थीटा है, तो उसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है इंटू आर डी थीटा, ये हो गया ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो एरिया में निकल जाएगा। अब ये हाफ बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे, ये जीरो था, जीरो से घूम 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 के 2 पाई पे आ जाएंगे, तो डी थीटा क्या आएगा, 2 पाई। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 2 पाई तक। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए से बी तक, ये आता है ना बी माइनस ए, आता है कि नहीं। अब ये डी थीटा जो है 0 से 2 पाई जाएगा, तो मतलब हाँ हाँ भैया समझ गया। 2 पाई, और ये हाफ आर स्क्वायर है। अब ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ये दो टू, और पाई आर स्क्वायर आ गया। ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो। दो ट्रे मतलब दो प्रोसेस है इसका, और अगले दिन ये पोलर करवा के मैं और एक प्रोसेस बता दूंगा नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए इतना ही, और कोई किसी का डाउट है क्या। ये कॉस का बता दूं क्या, कॉस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। भैया कल कंटिन्यू करना। नहीं आज नहीं होगा, आज मेरा क्लास है उसके बाद। इतना तक तो समझ में आ गया ना सब लोग को। हाँ आगे सब। नेक्स्ट डे पोलर करवा हाँ दूंगा। भैया समझ गया। हम्म। ठीक है, रखता हूँ आज के लिए। अगला क्लास कब होगा भैया? थैंक यू भैया। ओके।